Hello students, I am Dr. Mamta Singh. I am Assistant Professor in Psychology, Sector 6 Bhilai. Today we will cover in our lecture file concept. That is subtopic of memory management unit of operating system from PCA third year. So let's start our video. System concept. File system concept. In this lecture, we will cover file support device directory, access method, free space management, linked allocation, index allocation performance. So first of all, file support device directory. Information about file is maintained by directories. हमारे पुराने लेक्चर में जो इसके पहले हमने फाइल कंसेप्ट 1 लेक्चर बनाया था उसमें आपको बताया था व्हाट इज़ फाइल. तो आगे हम आज बताएंगे आपको व्हाट इज़ डायरेक्टरी. डायरेक्टरी इज़ द कलेक्शन ऑफ फाइल. A directory can contain multiple files. It can even have directories inside of them. A directory is a location for storing files on your computer. Directories are found in a hierarchical file system such as Linux, MS-DOS, Operating System 2 and Unix. In a GUI, that means graphical user interface, such as Microsoft Windows, directories are referred to as folder. जैसे आपको बताया था फाइल इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टॉपिक और सिमिलर इंस्ट्रक्शंस. सिमिलरली डायरेक्टरी इज़ द कलेक्शन ऑफ फाइल्स जिसमें एक टाइप की फ़ाइल या अलग अलग टाइप की फाइल्स भी रह सकती हैं. एक डायरेक्टरी के अंदर उसकी एक सब डायरेक्टरी भी हो सकती है. इसी डायरेक्टरी को जब GUI इफेक्ट में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वगैरह में यूनिक्स में फोल्डर के नाम से जाना जाता है. टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. डायरेक्टरी कितने टाइप की होती है और किस लेवल की होती है ये हम देखेंगे. फर्स्ट इज सिंगल लेवल डायरेक्टरी. Single level directory is the simplest directory structure. Since all the files are in the same directory, they must have the unique name. क्योंकि सारी डायरेक्टरीज जो होती हैं, सारी फाइल्स जो होती हैं वो एक ही डायरेक्टरी में होती हैं जिसके कारण उन सबका नाम यूनिक होना चाहिए. कोई भी सेम नाम की दो फाइलें नहीं हो सकती. यह सबसे सिंपलेस्ट वे या सिंपलेस्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है. आप फिगर में देख सकते हैं D1, D2, D3, these are directory name, and F1, F2, these are files name. Advantages of single level directory. Single level directory के कुछ importance हैं like its implementation is very easy. If the files are smaller in size, searching will become faster. The operation like file creation, searching, deletion, updating are very easy in such a directory structure. क्योंकि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. एक डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन ईजी होगा. इसमें कोई भी चीज़ सर्च करना ईजी होगा और जितने भी डायरेक्टरी ऑपरेशंस होते हैं लाइक क्रिएशन, सर्चिंग, डिलीशन वो सभी ईजी होंगे. डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल लेवल डायरेक्टरी. There may chance of name collision because two files cannot have the same name. Searching will become time taking if the directory is large. A user cannot use the same file name used by another user in the system. Even if the file with the same name is created, the old file will get destroyed first and replaced by the new file having the same name. इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि सिंगल लेवल डायरेक्टरी में अगर जो फाइल का नाम है वो यूनिक होना चाहिए. कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि जिसमें अलग अलग डायरेक्टरीज़ की भी फाइलें हैं तब भी उनका नाम सेम नहीं हो सकता. अगर सेम रखना है तो ओल्ड वन को पहले आपको डिस्ट्रॉय करना होगा फिर आप उसको रिप्लेस कर सकते हो नए से. टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. इन द टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ईच यूज़र has their own user file directory. The user file directory has similar structure but each lists only the files of a single user. System master file directory is searches whenever a new user ID logged in. The MFD, that means master file directory, is indexed by username or account number and each entry point to the UFD for that user. टू लेवल डायरेक्टरी में जैसे सिंगल लेवल में हमने देखा था कि एक ही लेवल था,
यहाँ पर आपको 2 लेवल दिखाई दे रहे हैं। ये आपका डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर, ये आपके फाइल्स हैं। फिर आप देख रहे हो कि ये अलग अलग यूज़र की कैटेगरी है। यूज़र को डिवाइड कर दिया गया है यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 एंड यूज़र 4 में। यूज़र वाइज इनकी डायरेक्टरीज़ हैं, उस डायरेक्टरी के अंदर जो भी इनकी फाइलें हैं वो सेव होती हैं। दिस इज कॉल्ड 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। Tree directory structure. In a tree directory structure, except root directory, every directory or file has only one parent directory. सभी डायरेक्टरी की एक पेरेंट डायरेक्टरी होना कंपलसरी है. So there is a total separation between the user which provide complete naming freedom. Here if a user wishes to access another user file, it has to go through 2 or more directories. ट्री स्ट्रक्चर में क्योंकि ये टोटल एक रूट डायरेक्टरी होगी, जैसे दिखाई दे रहा है फिगर में, ये आपकी रूट डायरेक्टरी है। ये सेकंड लेवल की आपके फाइल्स हैं रूट डायरेक्टरी के अंदर, और इस प्रकार डायरेक्टरीज़ हैं रूट डायरेक्टरी के अंदर। ये सब डायरेक्टरीज़ हैं। हर एक सब डायरेक्टरी या डायरेक्टरी के अंदर उनकी अपनी ओन पर्सनल फाइल हो सकती है। जैसे आप देखिए, यूज़र डायरेक्टरी यूज़र 1, रूट डायरेक्टरी यूज़र 1, F1 डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल, F2 के अंदर F7, F8 दूसरी सब डायरेक्टरीज़ हैं, और इन सब डायरेक्टरीज़ के अंदर अनदर फाइल्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो होगा ये ट्री स्ट्रक्चर कहलाता है। ये 3 स्ट्रक्चर हो गए आपके। इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्टरी के एट्रीब्यूट्स। क्या क्या एट्रीब्यूट्स डायरेक्टरी के होते हैं। फर्स्ट इज़ नेम। नेम मीन्स जो डायरेक्टरी का जो भी आप नाम रखे हैं। टाइप, डायरेक्टरी का टाइप क्या है। लोकेशन, जहाँ पर वो डायरेक्टरी स्टोर होती है उसका लोकेशन क्या है। साइज़ क्या है, कितने बाइट है, कितने ब्लॉक्स, कितने वर्ड्स हैं। पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन पे वो कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है, उनका पॉइंटर पोजीशन क्या है। प्रोटेक्शन क्या है। प्रोटेक्शन मीन्स होता है एक्सेस कंट्रोल, रीड राइट और एग्जीक्यूट अथॉरिटी जो है वो मिली है नहीं मिली है, वो सारा चीज़ इसमें आएगा। यूसेज, टाइम ऑफ क्रिएशन, एक्सेस, मॉडिफिकेशन, फाइल कब बनी है, उसका एक्सेस राइट क्या है, मॉडिफाई कब किया गया है, ये सब यूसेज में दिखेगा। देन माउंटिंग, व्हेन द रूट ऑफ वन फाइल सिस्टम इज ग्राफ्टेड इनटू द एग्जिस्टिंग ट्री ऑफ अनदर फाइल सिस्टम इज कॉल्ड माउंटिंग। फाइल एक्सेस मेथड। फाइल एक्सेस मेथड में फाइल के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम फाइल एक्सेस मेथड बोलते हैं। तो फाइल एक्सेस मेथड 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सिक्वेंशियल, डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस एंड इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस। Sequential access method. A sequential access is that in which the record are accessed in some sequence. That means the information in the file is processed in order, one record after the other. जब भी सीक्वेंस एक्सेस में रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया जाता है तो हमेशा वो एक सीक्वेंस में एक्सेस होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें रिकॉर्ड नंबर 21 को एक्सेस करना है और करंट पोजीशन पे जो हमारा रीड राइट हेड है वो 10 नंबर पे है, तो सीधा वो 10 से 21 पर नहीं जाएगा सीक्वेंशियल एक्सेस में। 10 से वो 11, 12, 13, 14 ऐसा करके 20, 21 सीक्वेंस में जाएगा। तो इस टाइप के जो एक्सेस होते हैं दैट इज सीक्वेंशियल एक्सेस। इसमें रीड राइट कमांड का यूज़ करते हैं। रीड कमांड कॉज अ पॉइंटर टू बी मूव्ड अहेड बाय वन एंड राइट कमांड एलोकेट स्पेस फॉर द रिकॉर्ड एंड मूव द पॉइंटर टू द न्यू एंड ऑफ फाइल। सच अ मैथड इज रीजनेबल फॉर टेप। इस टाइप का जो मेथड होता है वो मैग्नेटिक टेप जो सिस्टम चलते थे उनमें ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और सिक्वेंशियल एक्सेस वैसी प्रोसेस के लिए यूज़ होता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम फास्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, हम आराम से कर सकते हैं। जैसे पेरोल सिस्टम, एम्प्लॉय का पेरोल सिस्टम होता है, और फीस मैनेजमेंट एटसेट्रा। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का मेथड है। कोई भी जो उसका स्ट्रक्चर होता है डिस्क का वो ट्रैक्स एंड सेक्टर में डिवाइडेड होता है।
यहाँ पे इसको शो कराया गया है। ये भी जो भी आपके दिख रहे हैं सर्कल दिख रहे हैं, दैट इज ट्रैक्स, और वो ट्रैक अगेन डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। एक सेक्टर का जो कैपेसिटी है दैट इज़ 512 बाइट। तो ये रिकॉर्ड्स हैं। सिक्वेंशियल एक्सेस दिखा रहा है कि आप एक सीक्वेंस में ही रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो। डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस को हम रैंडम एक्सेस या रिलेटिव एक्सेस भी कह सकते हैं। जब भी हमें कोई इमीडिएट एक्सेस करने की आवश्यकता होती है, फास्ट करना होता है, तो डायरेक्ट एक्सेस मेथड का यूज़ किया जाता है। The file is viewed as a numbered sequence of block or record. There are no restrictions on which blocks are read-written. It can be done in any order. Useful in database application. Easy to read, write and delete operation. Direct access method का यूज़ randomly किया जाता है, immediate action के लिए किया जाता है। किसी प्रकार का कोई restrictions नहीं होता है कि अभी सारे ब्लॉक्स को क्रॉस करके ही आपको रिक्वायर्ड ब्लॉक पे जाना है। डायरेक्टली रीड राइट हेड जो भी रिक्वायर्ड ब्लॉक होता है वहाँ से डेटा को एक्सेस करता है। डेटाबेस एप्लीकेशन में जनरली इसका यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो भी होती हैं वो सारी डायरेक्ट एक्सेस होती हैं, लाइक एयरलाइन रिजर्वेशन, रेलवे रिजर्वेशन और जो भी आपके बैंकिंग सिस्टम, ये सब डायरेक्ट एक्सेस मेथड को फॉलो करते हैं। Index sequential access. It is the other method of accessing a file which is built on the top of the direct access method. It is a built on top of sequential access. It uses an index to control the pointer. While accessing file, to find a record in the file, we first search the index and then by the help of pointer we access the file directory. इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड ऐसा मेथड होता है कि जिसमें एक इंडेक्स फाइल क्रिएट की जाती है। वो इंडेक्स में सारे रिकॉर्ड के बारे में होता है। जैसा आप एग्जांपल समझ सकते हो, किसी भी बुक में कोई चैप्टर दिया है नहीं दिया है, या उसके बारे कोई टॉपिक के बारे में हमें देखना है कि वो बुक में है या नहीं है, तो हम सारे पेज पलटा के नहीं देखते, हम सामने इंडेक्स में जाके देख लेते हैं कि क्या ये टॉपिक उस बुक में है या नहीं है। अगर इंडेक्स में हमें दिख जाता है तो हम डायरेक्टली उस पेज पर पहुंच जाते हैं। वैसे ही यहाँ एक इंडेक्स स्ट्रक्चर होता है जहाँ से डेटा का पोजीशन देखा जाता है और उसको फिर वहाँ पहुँच के सिक्वेंशली एक्सेस किया जाता है। ये हमारा फाइल एक्सेस मेथड जो था वो 3 टाइप का यहाँ पे कवर होता है, जिसमें हमने सिक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस और इंडेक्स सिक्वेंशियल देखा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री स्पेस मैनेजमेंट। एज वी नो दैट द मेमोरी स्पेस इन द डिस्क इज लिमिटेड, सो वी नीड टू यूज द स्पेस ऑफ द डिलीटेड फाइल फॉर द एलोकेशन ऑफ न्यू फाइल। हमें पता है कि मेमोरी जो होती है वो बहुत ही प्रेशियस होती है, इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में भी आपने देखा कि कैसे उसको सेव करना है, कैसे एलोकेट करना है। तो फ्री स्पेस मैनेजमेंट क्या होता है कि जैसे जैसे फाइलें आती जाएं और उनका काम होता जाए तो हम जो जगह बची है वहाँ से उस फाइल को डिलीट करते जाएं और नई फाइल को उस जगह को एलोकेट कराएं। मतलब कम से कम जगह में ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सके और कोई भी स्पेस वेस्ट ना जाए। The system keep track of the free disk block for allocating space to file when they are created. जब कोई फाइल क्रिएट होती है तो सिस्टम वो डिसाइड करता है कि इसे कहाँ पर एलोकेट करना है। To reuse the space released from deleting the file, free space management becomes crucial. The system maintain a free space list which keeps track of the disk block that are not allocated to some file or directory. एक फ्री स्पेस लिस्ट बनाई जाती है सिस्टम के द्वारा जो बताती है कि सिस्टम में कहाँ कहाँ पर स्पेस फ्री है और उस फ्री स्पेस को फाइलों को एलोकेट कराया जाता है। टेक्निक टू इम्प्लीमेंट फ्री स्पेस। अब वो फ्री स्पेस को सबसे ऑप्टिमली कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। बिटमैप, लिंक लिस्ट, ग्रुपिंग एंड काउंटिंग। Bitmap vector. This technique is used to implement the free space management.
When the free space is implemented as the bitmap or bit vector, then each block of the disk is represented by a bit. बिटमैप वेक्टर में हर जो आपका बिट के द्वारा दिखाया जाएगा कि कौन सा ब्लॉक फ्री है और कौन सा ब्लॉक ऑक्यूपाइड है. When the block is free, its bit is set to 1, and when the block is allocated, the bit is set to 0. Many computers provide the bit manipulation instruction which is used by the user. इस फिगर में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं इस मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 9, 10, 3. ये दिखा रहा है आपका कि ये ब्लॉक्स जो हैं अभी फ्री हैं. ये कहाँ से पता चलेगा? वो फ्री स्पेस लिस्ट क्रिएट करता है सिस्टम, बताया था अभी आपको. वहाँ से हमने देखा कि ये ब्लॉक्स फ्री हैं. तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए. ये ब्लॉक्स की लिस्टिंग है जिसमें जैसे ज़ीरो ब्लॉक फ्री नहीं है क्योंकि यहाँ लिस्ट में नहीं है, तो ये इसके जो बिट का रिप्रेजेंटेशन होगा वो 0 होगा. 1 भी यहाँ फ्री नहीं है तो भी 0 होगा. क्योंकि 2 फ्री दिख रहा है तो ये 1 से रिप्रेजेंट होगा, 3 1 से होगा, और ये यहाँ से आपका पूरा 5 तक अब देखिए 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, बाकी फिर 0 से, फिर ये 9 1 से. तो दैट मीन्स जो फ्री है उसे 1 से रिप्रेजेंट करना है और जो एलोकेट है उसे 0 से. Advantages of bitmap. This technique is relatively simple. This technique is very efficient to find the free space. Disadvantages भी हैं इसके. This technique require a special hardware support to find the first bit in a word size is not 0. This technique is not useful for the larger disk. यह टेक्निक बड़े डिस्क के लिए यूजफुल नहीं है. सेकेंड मेथड है हमारा लिंक लिस्ट. इन दिस अप्रोच द फ्री डिस्क ब्लॉक आर लिंक टुगेदर. दैट मीन्स अ फ्री ब्लॉक कंटेन अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट फ्री ब्लॉक. लिंक लिस्ट अपने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है. लिंक लिस्ट में जो होता है एक ब्लॉक दूसरे फ्री ब्लॉक के पॉइंटर को कंटेन करता है. द ब्लॉक नंबर ऑफ द वेरी फर्स्ट डिस्क ब्लॉक इज स्टोर्ड at a separate location on disk and is also cached in memory. इसमें लिंक्स आपको दिख रहे हैं कि एक ब्लॉक जो है वो दूसरे ब्लॉक के एड्रेस को या पॉइंटर को स्टोर करता है. ये हेडर है इसका. ये सारे पॉइंटर्स हैं जो अगले फ्री ब्लॉक के पॉइंटर को कंटेन करे हैं. लास्ट में एक नल पॉइंटर होता है. In this linked list of all the free block is maintained. There is a head pointer which points the first free block of the list which is kept in a special location on the disk. This block contain the pointer to the next block and the next block contain the pointer of another next block, and this process is repeated. इसके advantages है. Whenever a file is to be allocated a free block, the operating system can simply allocate the first block in free space list and move the head pointer to the next free block in the list. इसे free space list में easily से maintain किया जा सकता है. Disadvantages हैं इसके. By using this disk, it is not easy to search the free list. A drawback of this method is the I/O required for the free space list traversal. Searching the free space list will be very time consuming, not efficient for faster access. Grouping. This approach stores the address of the free blocks in the first free block. The first free block stores the address of some, say n free blocks. Out of these n blocks, the first n1 blocks are actually free and the last block contain the address of next free n block. ग्रुपिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा ब्लॉक जो बाकी सभी फ्री ब्लॉक के एड्रेस को एक ग्रुप बना के स्टोर करे उनका एड्रेस, और आखिरी जो ब्लॉक होगा वो अगले फिर जितने भी नेक्स्ट फ्री ब्लॉक्स होंगे उनके एड्रेस को स्टोर करेगा. This approach is that the address of a group of free disk block can be found easily.
कोई भी फ्री ब्लॉक्स अगर एक ग्रुप में आपको दिखाई दे रहा है कि सारे फ्री ब्लॉक्स की एक लिस्ट मिल जाती है, तो नेचुरली उनसे सर्च करना ज़्यादा इजी होगा। काउंटिंग, this approach stores the address of the first free disk block and a number of free contiguous disk block that follows the first block। इसमें ये जो फिगर दिख रहा है आपको, जैसे ब्लॉक 5 के अगेन 2 ब्लॉक फ्री हैं, ब्लॉक 6 एंड ब्लॉक 7। तो काउंटिंग में इसको शो कराया जाता है एड्रेस ऑफ ब्लॉक 5 कॉमा 2। ये 2 ये दिखा रहा है कि 5 ब्लॉक के बाद 2 ब्लॉक और फ्री है, मतलब ये एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फ्री डिस्क ब्लॉक और उसके बाद कितने ब्लॉक फ्री है वो दिखाता है यहाँ पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइल एलोकेशन मेथड। फाइल को कैसे एलोकेट किया जाता है, ये मेथड। The allocation method define how the files are stored in the disk block and provide efficient disk space utilization। फाइल को sufficient disk space provide करना, ये allocation method के थ्रू देखते हैं। इसके 3 methods होते हैं, contiguous, linked and indexed। Contiguous allocation, in this scheme, each file occupies a contiguous set of blocks on the disk. Assigned disk address is in a linear order, easy to implement. External fragmentation is a major issue with this type of allocation technique. The directory entry for a file with contiguous allocation contain address of starting block and length of the allocated portion। कंटीजियस एलोकेशन को डिटेल में हम मेमोरी मैनेजमेंट में भी पढ़ाए हैं। इसमें आपको पता है कि कंटीजियस में एक साथ पार्टीशन होते हैं जिसमें फाइल को स्टोर कर दिया जाता है। वैसे ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए इजी होता है, बट इसमें कुछ फ्रेगमेंटेशन इश्यूज आते हैं, जैसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मेमोरी एलोकेशन, both the sequential and direct access are supported by this। For direct access, the address of the kth block of the file which start at block B can easily be obtained as B plus K। This is extremely fast since the number of seeks are minimum because of contiguous allocation of file blocks। तो contiguous allocation direct access method और sequential access method दोनों के द्वारा फॉलो किया जाता है। इसमें इसका एड्रेस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और इसमें सीक टाइम भी कम होता है। डिसएडवांटेजेस, दिस मेथड सफ़र फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। 2 फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम आती हैं, इनके बारे में डिटेल में मेमोरी मैनेजमेंट में बताया गया है। दिस मेक्स इट इनएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन। Increasing file size is difficult because it depends on the availability of contiguous memory allocation at a particular instance। Linked list allocation, in this scheme each file is a linked list of disk block which need not be contiguous। इसमें contiguous मतलब कंटिन्यू होने की आवश्यकता नहीं है, ये linked होते हैं जितने भी partitions होते हैं। Effectively used in sequential access file, inefficient in case of direct access file, no external fragmentation, each block contain a pointer to the next block, the directory entry contain a pointer to the starting and the ending file block। इसके पहले भी आपको जो लिंक लिस्ट बताया, सिमिलरली वैसा इसमें भी पॉइंटर होता है, एक ब्लॉक के पास अगले ब्लॉक का पॉइंटर होता है और वो एक लिंक द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें कंटीजियस एलोकेशन एक साथ जो भी आपका स्पेस आता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, कहीं भी फ्री स्पेस होगा वहाँ पे फाइल ऑक्यूपाई हो सकती है क्योंकि वो पॉइंटर से कनेक्टेड हैं। एडवांटेजेस, दिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ फाइल साइज। फाइल साइज कैन बी इंक्रीज्ड ईजिली since the system does not have to look for a contiguous chunks।
This method does not suffer from external fragmentation. This makes it relatively better in terms of memory utilization. कंटीजियस में मेमोरी का यूटिलाइजेशन उतना प्रॉपर नहीं होता, पर लिंक लिस्ट में मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। इसमें किसी प्रकार के फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी नहीं आती और इसमें कंटीजियस चंक ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ पर भी फ्री स्पेस है वहाँ डेटा स्टोर हो जाता है। Disadvantages: because the file blocks are distributed randomly on the disk, a large number of seeks are needed to access every block individually. This makes linked allocation slower. क्योंकि फ्री स्पेस एक साथ नहीं है, स्कैटर्ड फॉर्म में है, बिखरा हुआ है, तो इसे सर्च करने में सीक टाइम ज़्यादा लगता है और इसलिए लिंक एलोकेशन स्लो हो जाता है। It does not support random or direct access. Pointer required in the linked allocation incurs some extra overhead. पॉइंटर से जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस पता चलता है, नेक्स्ट एड्रेस पता चलता है, वो इसके ओवरहेड को बढ़ाता है। इंडेक्स्ड एलोकेशन थर्ड टाइप का एलोकेशन है ये। प्रोवाइड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ कंटीजियस एंड लिंक्ड लिस्ट। Instead of maintaining a file allocation table of all the disk pointers, a special block known as the index block contains the pointer to all the blocks occupied by a file. Index allocation में एक index block बनाया जाता है जिसमें सभी blocks का एड्रेस होता है। जैसे आपको बताया था कि जैसे बुक में इंडेक्स होता है, सेम वैसी एलोकेशन के लिए भी एक इंडेक्स ब्लॉक बनाया जाएगा। ये जो आपका एलोकेशन मेथड होता है कंटीजियस और लिंक लिस्ट में आने वाले सारे ड्रॉबैक को रिमूव करता है। इसमें आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये आपका इंडेक्स ब्लॉक है, इसमें जितने भी फ्री ब्लॉक्स हैं उसके एड्रेस को ये स्टोर कर रहा है। Advantages: this support direct access to the block occupied by the file and therefore provide fast access. Index block doesn't hold the file data but it holds the pointer to all the disk block. Directory entry will only contain the index block address. It overcomes the problem of external fragmentation. A bad data block causes the loss of only that blocks. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें एक्स्ट्रा ओवरहेड नहीं होता, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, पहले इंडेक्स चेक होता है इसीलिए सर्चिंग फास्ट होती है, और कोई डेटा ब्लॉक अगर ख़राब है तो केवल वही ब्लॉक अफेक्ट होता है, दूसरा नहीं। डिसएडवांटेजेस: द पॉइंटर ओवरहेड फॉर इंडेक्स एलोकेशन इज़ ग्रेटर दैन लिंक्ड एलोकेशन। क्योंकि इसका इंडेक्स एलोकेशन के लिए जो आपका ओवरहेड होता है पॉइंटर का वो और बढ़ जाता है। साइज ऑफ अ फाइल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पॉइंटर अ इंडेक्स ब्लॉक कैन होल्ड। हैविंग एन इंडेक्स ब्लॉक फॉर अ स्मॉल फाइल इज टोटली वेस्टेज। अ बैड इंडेक्स ब्लॉक कुड कॉजेज द लॉस ऑफ एंटायर फाइल। जैसा कि एडवांटेजेस में मैंने बताया कि बैड ब्लॉक अगर पाया जाता है तो वहीं इफेक्ट होता है, पर कभी कभी एक ऐसा आता है कि बैड इंडेक्स ब्लॉक जो होता है उसके कारण एंटायर फाइल भी लॉस हो सकती है। और कोई छोटी फाइल है तो डायरेक्टली एक्सेस करना ज़्यादा इजी हो सकता था उसमें, पर क्योंकि इंडेक्स एलोकेशन है तो उसका भी एक इंडेक्स टेबल मेंटेन करना पड़ता है। उस टेबल को मेंटेन करने का जो ओवरहेड होता है वो वेस्टेज जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है जिसमें हमने देखा बहुत सारे एलोकेशन मेथड, कंटीजियस, लिंक लिस्ट और आपका इंडेक्स एलोकेशन। तो ये फाइल सिस्टम कंसेप्ट के आपके सारे जो टॉपिक्स थे यही कवर होते हैं। थैंक यू।